مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ یہ سعادت اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی، اور بلکہ دو ہی نہیں آئیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ جل شانہ مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا نا تو میں نے ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دینی تھی۔ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ، بڑے خوبصورت تھے آپ، بڑے حسن و جمال اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی بڑے تھے، ہم سخی نہیں کوئی بھی، ہمارے تو آگے جب تک کو بندہ آدھا گھنٹہ آ کے اپنا رونا نہ روئے ہم کہاں دیتے ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے بھی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو پھر اس کی طلب سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اب بہت سخی تھے، اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ معاملات ایسے ملیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے، بڑے سخی تھے۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے، اللہ ہمیں سخی کر دے۔ اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی۔ یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا، او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے۔ اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی، غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے۔ سخی بن جاؤ۔ اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا، تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری۔ تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، سخی ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول علیہ السلام۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت، اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے۔ اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر۔ 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے، آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے۔ اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں، تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا۔
आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 3 गुना, आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 5 गुना, आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था, तो ताजर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं, उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जा बिल हसना, मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया, अल्लाह कहते हैं, ओ बंदे तू 1 ले क्या, मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है, और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है। ये नहीं कि अल्लाह ने कह दिया 10 पे एंड कर दूंगा, ये 10 सबसे एंड मिकदार है। फरमाया, अगर खुलूस ज्यादा होगा तो 70 गुना दूंगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो बगैर हिसाब दूंगा। आपने फरमाया, अगर कोई है 10 गुना वाला तो बात करो। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। और लिखा है कि आपने मदीना पाक में सदा लगवाई। आपने फरमाया, माल पड़ा है, जिसको जो जरूरत है आए और उठा कर ले जाए। ये थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। और ऐसे की हजरत जी, घर दे 12 जी ने, मैं मुंडे की मंगनी की है जी, 2 लड्डू दे के दे ओ गए जी भाई। और नहीं, सखी बनो हजरत, बस दुआएं ना लो, दुआएं लो लोगों, सखी बनो। ये लिखा है उस बात, अल्लाह सानू माफ कर दे। बड़े कंजूस लोग, बड़े जालिम हजरत, अल्लाह सानू माफ कर दे। जिसके पास नहीं है तो उसकी तो समझ आई यार, जिसके पास है वो क्यों इस तरह है। और एक बात थी, बड़ी देर वो व्हाट्सएप पे घूमती रही, और हकीकत है हम लोग इसी तरह करते हैं। किसी ने बड़ी जूती मारी थी किसी को, उसने क्या लिखा, उसने कहा, एक अमीर औरत कपड़े की दुकान पर बैठ कर ना दुकानदार को कह रही थी, ओ मेरे मुंडे दा विआह है ते जिहड़ी सब ना लो क्वालिटी है ना, जरा मैनूं वो दिखा, मैं अपनी काम वाली नूं कपड़े देने ने। और दूसरी तरफ क्या लिखा था कि एक गरीब काम वाली दुकान पर क्या कह रही थी, और मैं जिन्हां दे घर काम करनी है उन्हां दे मुंडे दा विआह है, जरा मैनूं महंगा जिहा सूट विखा, मैं देना है। हाय हाय हाय, ना हैदरी फक्र है ना दौलत है, उस्मानी है। और कंजूस ना बनियो हजरत, कदी जालिम ना बनियो, सखी बनियो, सखी बनियो हजरत। अल्लाह को सखी बड़ा पसंद है। ये अगर कोई को इसका हवाला दें तो मैंने ये बात किसी किताब से नहीं पढ़ी। मैं एक दफ़ा एक ख़त्म पर गया, वहाँ एक बड़े बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने ये बात बयां की, इसलिए मुझे हवाला नहीं मालूम, लेकिन बात बड़ी मशहूर है। ये मदीना पाक का ना बड़ा मशहूर यहूदी कबीला था बनु कुरैज़ा। इन्होंने एक वादा खिलाफी की और फिर सज़ा ये आई अल्लाह की तरफ से कि हुक्म दिया, इन सब की गर्दनें उड़ा दो। बनु कुरैज़ा यहूदियों का कबीला था, वो सब की गर्दनें मार दी गई। नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, सब की गर्दनें उतारी गई। तो मैंने पढ़ा नहीं, एक आलिम दीन थे और माशाल्लाह उनका नाम ही एक बहुत बड़ा हवाला था। तो कहते हैं सिर्फ एक यहूदी रह गए, आखिरी यहूदी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्दनें उतार रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली से छोड़ दो, जाने दो इसे। अब ये नहीं कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्योंकि उनकी शान तो यही समेना व अताना, कोई इख्तलाफ नहीं था। ये था राज जानने के लिए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ये भी तो यहूदी है, जो कसूर उन्होंने किया था इसने भी तो किया है। ए अल्लाह के रसूल, आप पर माँ बाप फिदा हों, उनकी उतार दी, इसको क्यों छोड़ दिया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुदा का सलाम और पैगाम लेकर आए थे, और सलाम के बाद पैगाम ये आया है, महबूब इसे माफ कर दो, ये सखी है, ये गरीबों को खाना खिलाता है। यहूदी हजरत, महबूब ये सखी है, ये गरीबों को खाना खिलाता। और हजरत एक नहीं, कुरान पाक में बार बार मुजम्मत आई, ओ तू गरीब को खाना नहीं खिलाता। चलो मैं दूर नहीं लेके जाऊंगा, वो पारा जो आप सारे खोल सकते हो, जो तकरीबन 8वीं और 9वीं और 10वीं के निसाब में भी शामिल रही, और तकरीबन इस वक्त तकरीबन वही सारे चेहरे बैठे हैं जिन्होंने ये निसाब पढ़ रखा है।
अराईत अल्लज़ी, सूरह माऊन, अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लज़ी यदूल यतीम, वो यतीम नूं धक्के दिंदा है। फला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन नूं खाना नहीं खुआंदा। सूरह फज्र 30वां पारा, फिर वही बात आई हजरत, वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन नूं खा ना दिलों पे बिजलियां गिराया करो। मुंडे की मंगनी की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है हजरत, लेकिन जे देन जाते हो खुदा दा वास्ता है अपनी बीबियां नूं कहो चलिए ऐना ध्यान कर, घर जी किन्ने ने, ये तेरे 2 लड्डुओं का क्या करेंगे वो गरीब लोग, हजरत ध्यान किया करो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, अब हजरत अब हाली बांटते नहीं थे, अब बांटने का भी अंदाज सुनो कैसा था उन लोगों का। नबी अलैहिस्सलाम ने घर तशरीफ लाए, तो बज़ाहर का लफ्ज जरूरी है, बज़ाहर कुछ मौजूद नहीं था हजरत। आप आए, आपने आकर पूछा कुछ खाने को है, अर्ज की गई अल्लाह के रसूल नहीं है कुछ, क्योंकि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, कशाने नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाने के बाद ना हुजूर फिर घर तशरीफ लाए, तो क्या देखा कि खाना पड़ा है। आपने पूछा ये खाना कहां से आया है, तो अर्ज की गई ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, हम खाना रखने वाले को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कपड़े से अपना मुंह छुपा रखा था, दस्तक देते जाते थे और खाना रखते जाते थे। तो लिखा है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेरे उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है, मेरे उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है। उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह ताला, ना हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है हजरत। हाँ हजरत हमेशा ध्यान रखना, सारियां वंडा उस बेनियाज दियां ने हजरत, और वो चाहता तो सबको अमीर कर देता, वो चाहता तो किसी को कसर ना आने दे, लेकिन क्या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ क्या अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, असी देखांगे तुहाडे जी चंगे काम केड़ा करदा है। ये ना समझना कि हजरत जब उसकी बारी आई तो खुदा के खजानों में से खत्म हो गया था, नहीं हजरत उसके खजाने तो भरे पड़े। हाँ ये है, मैं देखूंगा कि तुम में से अच्छे काम, हाँ आजमाइश है हजरत, ध्यान रखना हमेशा माड़े अंदर। हजरत किसी को भी उठाकर देख लो, ये मैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सिर्फ इसको खत्म नहीं करता, किसी को भी उठाकर देख लो, हजरत फारूक आजम को पढ़ लो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पढ़ लो, हजरत नबी अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया ना, तो एक छोटी सी बच्ची हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और आके ना रोने लग पड़ी, और ऐसा रोई कि नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा को भी रुला दिया। जब थोड़ी उसकी तबीयत संभली ना, तो खलीफा रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा रोन क्यों रही है, तो कहती है नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा कर लिया, विसाल हो गया हुजूर का। तो आपने फरमाया तुझे क्या बताऊं कि अबू बकर के दिल पे क्या गुजर रही है। तो आपने फरमाया रो क्यों रही है, तो कहती है घर में सिर्फ मेरी दादी है जो नाबीना है, अम्मी इंतकाल कर गई, वाला साहब एक गजवे में शहीद हो गए, अब मैं हूं और मेरी अंधी दादी है, एक हमारी बकरी है, उसी के दूध से हमारा गुजर बसर होता है। तो आपने फरमाया बकरी मर गई, वो कहती नहीं है, दूध देना छोड़ दिया, नहीं दे रही है। तो आपने फरमाया रो क्यों रही है, वो कहती है दादी अंधी है, वो तो दूध निकाल नहीं सकती, मैं छोटी हूं मुझे निकालना आता नहीं। जब नबी अलैहिस्सलाम हयात थे तो आप रोज आया करते थे और हमें दूध निकाल के दिया करते थे। अब रो इसलिए रही हूं कि हुजूर का तो इंतकाल हो गया, अब दूध कौन निकालेगा। हजरत को छोटा सा नाज़िम नहीं किसी इलाके का, को छोटा सा एमए नहीं है, एमपी नहीं है, खलीफा रसूल हैं हजरत, अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के दिलों की धड़कन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई आम शख्सियत नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली को मुबारक दिया, आपने फरमाया अली मुबारक हो। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा अबू बकर काहे की मुबारक, आपने फरमाया मैंने नबी अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना कि कल अल्लाह जल्ला शानहू जन्नत के परवाने अली को अता करेगा, अली जिसको चाहे आगे दे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अबू बकर आपको भी मुबारक हो। हजरत अबू बकर ने पूछा अली मुझे मुबारक किस चीज की दे रहे हो,
تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا تھا، اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ چھوٹا نام نہیں ہے ابو بکر، حضرت کو محلے کا چھوٹا سا نازم نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، خلیفہ رسول۔ آپ رو کر فرمانے لگے ابو بکر مر نہیں گیا، جب تک ابو بکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابو بکر نکالا کرے گا۔ دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت، دعائیں لو۔ اسی اپنے کار بد دعاواں دے ڈیر لا لیتے نہیں حضرت، بد دعاواں ہی بد، اپنے خلاف دعائیں کرنے ہی حضرت، دعائیں لو حضرت، دعائیں۔ جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت، جس کو پڑھ لو، تم کسی کو سخت نہیں پاؤ گے، تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤ گے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔